श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज एक नए अंदाज के साथ आप लोगों के सम्मुख पेश होने जा रहा हूं। अब तक आपने ये देखा कि जितने भी हमारे इंटरव्यूज रहे हैं वो लगभग सभी इंटरव्यूज हमारे अपने स्टूडियो में हुए, लेकिन आज विशेष परिस्थितियों में हम एक गुड़गांव के एक्सपर्ट डेंटिस्ट डॉक्टर चंद्र प्रकाश से उनके क्लिनिक में उनका इंटरव्यू लेने आए हैं। कारण ये है इनकी व्यस्तता, दूसरा मेरा अपना निजी अनुभव इनके बारे में कि ये वाकई एक बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर हैं। तो हमने सोचा कि हम अपने स्टूडियो से बाहर निकल के अपने बहुत से ऐसे एक्सपर्ट लोगों के इंटरव्यूज करते हैं जो समाज को अपने हुनर की वजह से बहुत कुछ दे रहे हैं। डॉक्टर चंद्र प्रकाश, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूं कि बहुत समय के बाद आपने समय निकाला हमसे बातचीत करने का, लेकिन मुझे भी ये तमन्ना रही कि आपको अपने रेडियो बूज के एक इंटरव्यू पे हम जरूर लेके आएंगे, क्योंकि हमारी ये इच्छा रहती है कि समाज को किस किस ढंग से हम बेनिफिट कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक उद्देश्य जो हमारे रेडियो का है वो लोगों की वेलनेस पर है, और वो वेलनेस फिजिकल प्लेन पर भी है, वो वेलनेस मेंटल प्लेन पर भी है और अध्यात्म प्लेन पे भी है। तो मैं ये समझता हूं कि प्राइमरीली जो हमारा लक्ष्य है उसमें फिजिकल वेलनेस में आपका बहुत जबरदस्त योगदान है। ये मैंने निजी तौर पर भी महसूस किया है। तो डॉक्टर साहब, मैं ये चाहूंगा कि हमारे श्रोताओं को आप छोटा सा ब्रीफ अपनी इंट्रोडक्शन, अपनी क्वालिफिकेशन, कब से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन सब बातों को आप बताने का कष्ट करें। First of all, I would like to thanks to all the team of Radio Booz who has taken out a time to reach up till this level. Especially the weather condition is so bad. Yes. I was not expecting, but आपके जज्बे को देखता हूँ तो लगता है कि हाँ ठीक है, मतलब इस टाइम post retirement also you are still working time to time and always on the toes. So thank you for all the team, those who have taken time to come up to this level, for taking a small interview. Although sir was asking for this interview from so long, but maybe I was a little busy in some cases, so I couldn't get some time, sir. And बहुत बहुत धन्यवाद आप आज यहाँ पर। Thank you. और see, I am my name is Dr. Major Chandra Prakash. Okay. I am a maxillofacial surgeon. Okay. Which is dentist by basic graduation. I did my Bachelor of Dental Surgery in 2002, and then 2003 I got commissioned in Indian Army. Okay. As a Indian Army officer, I served in Northeast sector and the Central sector in Bhopal in SSB. Okay. And I have served in Northeast Assam, Arunachal Pradesh, and in Western part Jaisalmer and Badmer. So my job was a dental specialist there in Army as well. Okay. So I guess with the defense services experience, I came to know that the punctuality as well as the time is one factor which is very important in day-to-day practice. Yeah. There my job was mainly the dental and the surgical part in dentistry, where we got lot of traumatic cases and facial fractures and dental cysts, other kind of things. Yeah. So first of all, I would like to tell you about myself that I am a doctor. I'm a dentist. Okay. By profession, I did my graduation as a dental surgery, and post that I did my 3 year of training in maxillofacial surgery. Okay. And after that, I did my
rhinoplasty training from Istanbul, Europe, and that is known as nose surgeries for changing the cosmetic noses. Okay. And I did my implant surgery specialization from PGIMS Rohtak through IGNOU Basic Sciences. I did my 5 year of BDS, then 3 year of post specialization, then 6 months of specialization in my dental implantology, and then 3 months in oral cancers, and residencies in senior residency in Safdarjung Hospital. From 2009 to 2012, I have done in Vardhman Mahavir Medical College, Safdarjung Hospital, as a senior specialist in oral and maxillofacial surgery. So this is also I want to tell you. Yeah. The oral and maxillofacial surgery is a branch which is basic as a dental surgery, and post that we used to do 3 years of training in facial surgeries, jaw correction surgeries, cleft surgeries, birth defects of the face, and all cysts like kind of रसौली जो हम कहते हैं दांत से रिलेटेड हो जाती है, ट्यूमर्स जो हो जाते हैं, टंग कैंसर्स जो हो जाते हैं, all kind of surgeries which is related to the jaws above the neck, whatever the surgeries we used to do, that is a maxillofacial surgery. Our basic the specialization deals with all kind of trauma and reconstruction related to face, where we get roadside accidents, trauma, jaw fractures, upper jaw fractures, sometimes get a birth defects where the people have defects in the lip also. They cannot speak, they cannot have food, they cannot digest it properly. So these kind of things we are specialized in. Although we are doing the dental surgery and the dental implants as a basic part of our surgery, which we are doing here, and nowadays post-COVID mucormycosis, black fungus, treatment of maxillectomies, like जिसमें हमने jaw को remove कर दिया है completely, उनका reconstruction with implants. जिनके पास बिल्कुल भी बोन नहीं है जॉ में, उनके लिए हम जागोमेटिक इम्प्लांट्स भी कर रहे हैं. सो हमारा बेसिक काम सर. राइट. डॉक्टर साहब, सिंस व्हेन यू आर डूइंग दिस प्राइवेट प्रैक्टिस? 2012 August, I have started my private practice, sir. And before that, I was with the central government services and the defense services. Okay. Dr. Saab, I'm keen to understand one thing, that your area of expertise which you have mentioned, it was more utilized in services time, particularly in the armed forces. Sir. Even in private practice, you come across any such patients with whom? Very oftenly, sir. Very often. oftenly, because of metropolitan cities, day to day we get almost in a week 3 to 4 facial fractures, where the fractures come along with the all bodies fracture as well. So, like an orthopedic surgeon, in case if some patients goes to their hospital, like they got a leg fracture or a femur fracture or a hand fracture or a shoulder fracture by having any accident, so they used to call us as a moral and maxillofacial surgeon, because our specialization deals with facial surgery. So even the plastic surgeons call us for fixing and reconstructions of the jaws, which is our specialization. So in case if we see that this is an OPD clinic, sometime patient is directly referred to us, and we let the patients along with us to the hospital and we operate there. And sometimes the all super specialization hospital, they used to call us directly. So we are already on panel with number of hospitals where they are calling us. I am already having 3 more hospitals where I used to go only for maxillofacial surgery. But all daycare procedures like the wisdom tooth surgery, which is very common nowadays. Every young patient comes to us that there's a swelling, the wisdom tooth is coming, somebody is saying, some dentist is saying that it is in the bone, हमें surgeon को बुलाना पड़ेगा for the extractions. So these kind of the problems, they directly come to us, or otherwise referred by us sometime by a dentist also. Ki sir, I am sending a patient to you that I have already checked his x-rays and other things. It is very near to the nerve and it is almost horizontally placed wisdom tooth surgery. So these kind of surgeries which we can do in a daycare procedures, we are doing in a daycare. Like this center is a creative oral surgery. So I purposely, I was having a dream, like I will open a center where I'll be performing more oral surgical procedures, where we can do without admitting the patients. We are doing daycare. Although we are doing nitrous oxide,
for completely painless procedures. Okay. We are using IV sedations for completely painless procedures, and even the anxiety is not there, and we are performing the surgeries. Right. They cut cost the patients, cost also. Right. Reason being, in case if you are admitting for these small procedures and getting it done under a hospital care, Right. the cost is very high. Right. So we are trying to do it under IV sedations and under some local anesthetic procedures, and as well as nitrous oxide, to perform these procedures in a more general day-to-day care procedures. Right. Like an ENT surgeons and an Yeah. ophthalmic, they are also doing procedures under LA and conscious sedation, doing it morning, and within few hours we let the patients go home back. So this is what we are doing here. Okay. डॉक्टर साहब, ये आपने अपने एक्सपर्टाइज के एरियाज को हमें डिफाइन किया। हमारे ऑर्डिनरी लिसनर को आप एक सरल भाषा में ये बताने का प्रयास करेंगे कि आम व्यक्ति को जो दांतों से रिलेटेड छोटी मोटी समस्याएं रहती हैं, कभी कैविटी की फिलिंग कराना, कभी उनके टूथ का एक्सट्रैक्शन करना, या इससे रिलेटेड जो छोटी मोटी रूटीन की प्रॉब्लम्स हैं, उनमें से किन किन समस्याओं को आप डील करते हैं और उसका क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं? See, although we say that this is creative oral surgery, Yeah. but I have two more experienced dental surgeons along with me. Okay. साथ में मेरे पास कुछ और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स भी हैं जिनको हम ऑन कॉल कंसल्टेशंस के लिए बुलाते हैं। Okay. जैसे कि मेडिकल साइंस बहुत दिन ब दिन बहुत एडवांस होती जा रही है, एंड Right. स्पेशलाइजेशन के साथ सुपर स्पेशलाइजेशंस भी हो गई हैं। Okay. तो हम डेंटिस्ट्री में बेसिक डेंटल प्रोसीजर्स, जो डेंटल फिलिंग, डेंटल स्केलिंग मतलब फिलिंग करना, दांत भरना, Yes. दांतों की सफाई करना, Right. मसूड़ों की सफाई करना, ये सारे प्रोसीजर डे केयर जो डे टू डे में हम लोग कर रहे हैं, Right. वो हमारे यहाँ पर जो जनरल डेंटिस्ट हैं जिनका 10+ ईयर्स एक्सपीरियंस है, Okay. वो लोग फिलिंग्स, सिंपल एक्सट्रैक्शंस और आपका स्केलिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, प्रोस्थेसिस हो गया, कंप्लीट डेंचर्स हो गया, वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे करी जाती हैं। बिसाइड दैट, अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इम्प्लांट्स की, तो वो उसके लिए मैं स्पेशलाइज्ड हूँ। आई एम अ सर्टिफाइड इम्प्लांटोलॉजिस्ट हैविंग a good experience in all kind of Yeah. implants, so we are doing those implants also. Right. And advanced procedures like root canal, so we have an endodontist full time here, though जिनका काम सिर्फ रूट कैनाल प्रोसीजर्स करने का है। Right. सर्जिकल एक्सट्रैक्शंस और ऑल सर्जरीज, एक्सट्रैक्शंस मतलब दांत निकलवाना। नॉर्मल दांत निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, बट कई बार अगर दांत इन्फेक्शन के साथ हो, पस हो, या दांत के अंदर हड्डी में टेढ़ा पड़ा है, या बहुत नर्व्स के पास पड़ा है, जो नसें होती हैं, Right. जिनके कटने से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, Right. उन सर्जरीज के लिए मैं स्पेशलाइज्ड अपने आप को मानता हूँ, जिसके लिए मैं ऑलरेडी ट्रेंड स्पेशलिस्ट हूँ। बाकी जो जनरल प्रोसीजर्स है वो हम सब यहाँ पर कर रहे हैं सर। बच्चों के लिए हमारे पास पीडियोडोंटिस्ट आते हैं, पायरिया स्पेशलिस्ट के लिए हमारे पास पेरियोडोंटिस्ट आते हैं, प्रोस्थो के लिए मतलब जो दांत बनाने के लिए हमारे पास प्रोस्थोडोंटिस्ट आते हैं, और जो हमारे एंडोडोंटिस्ट हैं उनका काम रूट कैनाल का है। सो हमने अभी जो गुड़गांव में देखा है एज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, पीपल आर वेरी अवेयर एंड वेल एजुकेटेड, सो आजकल वो हर काम आते हैं। तो एज अ जनरल डेंटिस्ट भी अगर हमारे पास आते हैं और मैं बोलता हूँ कि सर मैं ये काम कर सकता हूँ, तो दे सेड कि सर आप सर्जन हैं, तो क्या आप रूट कैनाल भी करेंगे? ऑल्दो वी कैन डू रूट कैनाल, बट स्टिल अगर हमारे पेशेंट की प्रायोरिटीज हैं कि मैं एक एंडोडोंटिस्ट से ट्रीटमेंट कराना चाहता हूँ, तो हमारे पास फुल टाइम एंडोडोंटिस्ट अवेलेबल होते हैं, और बाकी स्पेशलिस्ट भी अवेलेबल हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे लिसनर्स को ये बताना चाहेंगे कि आपके कितने क्लिनिक हैं और किस किस टाइम आप कहाँ अवेलेबल होते हैं? सर थोड़ा सा डिफरेंटली, आई ऑलवेज सेज टू माय पेशेंट दैट आई एम नॉट डूइंग एनी डिफरेंट वर्क, बट आई एम डूइंग डिफरेंटली। यस, सो दिस इज व्हाट माय स्पेशलाइजेशन more important. या सो आई एम ट्राइंग, बिकॉज बुक्स मैंने भी वही पढ़ी है जो मेरे कोलीग्स ने पढ़ी है, Yeah. और वो भी वही कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ, या मैं वो कर रहा हूँ जो वो कर रहे हैं, Yeah. बट थोड़ा कोशिश करता हूँ कि डिफरेंटली फॉर द पेशेंट कंफर्ट एंड देयर सेटिस्फिकेशन लेवल, Yeah. मेरे लेवल तक वो आए। हाँ. तो जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होता, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने पेशेंट, अगर मैं उस चेयर पे बैठा होता हूँ तो मैं क्या सोचता, राइट, या ये फिलिंग करने के बाद
मुझे कैसा लगता कि मुझे ऊंचा लग रहा है या मुझे नेचुरल फील नहीं हो रहा है, या मैं इम्प्लांट लगवा रहा हूँ मैं. सो I always think myself on that chair where my patient sitting sometime, so that I can give my 100% that what patient sometimes feel. Yes. Because for my patient is always a patient. Right. So मैं उस patients के साथ कोशिश करता हूँ कि वो काम कर सकूँ सर. मैं भूल गया, आपने कुछ क्वेश्चन पूछा था. मैं यही पूछना चाह रहा था कि कहाँ आपके क्लिनिक मेरे 2 सेंटर्स हैं सर, जो मेरे पर्सनल सेंटर्स है. वन इज इन सेक्टर 67, विच इज इन M3M अरबाना मॉल, एंड इट्स ऑन 4th फ्लोर. C403 इज द ऑफिस, जहाँ पर हमारे पास ऑलमोस्ट ऑल फैसिलिटीज है. वी हैव 2 बिग सर्जरीज हियर, माइनर OT हियर, सो दैट हम काफ़ी प्रोसीजर्स डे केयर में भी यहाँ पे कर लेते हैं. हमारे पास OPG फैसिलिटी है जो फुल माउथ एक्सरेज लेती है. हमारे पास स्कैनर फैसिलिटीज़ हैं. हमारे पास इम्प्लांट स्कैन, जिसके लिए आप CT स्कैन कराते हैं, वो भी अवेलेबल है, जिससे हम कुछ इम्प्लांट्स का यहीं पे स्कैन कर सकते हैं. अगर हमें फुल जॉ स्कैन्स करवाने होते हैं तो हम इमेजिंग सेंटर्स पे उन्हें बेचते हैं. अदरवाइज सारे प्रोसीजर्स एंड ऑल काइंड ऑफ स्पेशलिस्ट इक्विपमेंट्स वी हैव. हम लोग सर काफ़ी प्रोसीजर्स, हमारे पास कॉटरी हैं, हमारे पास पीजो सर्जरीज हैं, जिनके वजह से हम ब्लडलेस फील्ड सर्जरीज कर सकते हैं. हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड कॉन्शियस सेडेशन की अवेलेबिलिटी है, जिससे हम कॉन्शियस सेडेशन मींस नाइट्रस ऑक्साइड थोड़ा नोज पे लगा के हम बाकी प्रोसीजर्स करते हैं. पेशेंट फील्स वेरी लाइट, दे डोंट फील एंग्जाइटी विद दैट. सो ये सारे प्रोसीजर्स करते हैं. मेरा सेकंड क्लिनिक सेक्टर 47 में है, जो कि मालिबू टाउन में है पिछले 10 साल से. और वहाँ पर हमारा जो क्लिनिक है वो भी बिल्कुल एट पार लाइक दिस क्लिनिक है. हालांकि स्पेस हमारे पास वहाँ पर एक 2 चेयर का है, जहाँ पर हम ऑल जनरल डेंटल प्रोसीजर्स करते हैं. और सर्जिकल और इम्प्लांट प्रोसीजर्स के लिए हम अपने सारे पेशेंट्स को M3M अरबाना बुलाना चाहते हैं, जहाँ पर हमारे पास ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल है. राइट. तो डॉक्टर साहब, आफ्टर लिसनिंग ऑल your expertise and various other treatments which you are giving, any message which you would like to give to our listeners being a expert dentist? I guess आपके इंटरव्यू से मैंने एक छोटी सी चीज़ सीखी है आज थोड़े से टाइम में ही, कि मैं जैसे आपको बोल रहा था कि मैं डिफरेंट नहीं हूँ, पर डिफरेंटली काम करने की कोशिश करता हूँ. आपके अपने पेशेंट, आपके अपने डॉक्टर्स जहाँ पर आप जाते हैं, आप उन्हें उनके पास ट्रीटमेंट करा सकते हैं. नॉट नेसेसरी दैट आई एम द बेस्ट, देयर आर नंबर ऑफ डॉक्टर्स हु आर डूइंग मच बेटर देन मी एज वेल. बट जब भी आप कोई सर्जिकल पार्ट प्लान करते हैं, इम्प्लांट सर्जरी प्लान करते हैं, उसके लिए आप हमेशा चूज़ करें कि अगर आपको ट्रीटमेंट कराना है तो क्या वो डॉक्टर या वो डेंटिस्ट उस पर्टिकुलर फील्ड के माहिर हैं, या वो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, या उनके पास कोई स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन के लिए आते हैं. क्योंकि न्यू डॉक्टर्स भी बहुत अच्छी तरीके से सर्जरीज परफॉर्म कर सकते हैं. और जो वो सर्जरीज नहीं कर सकते हैं, जिनके लिए वो ऑथराइज्ड हैं भी और नहीं भी, ऐसे बीइंग एज अ जनरल डेंटिस्ट दे कैन परफॉर्म सर्टेन सर्जरीज, बट एज अ स्पेशलिस्ट आई गेस जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो अपनी उस पर्टिकुलर फील्ड में एडवांस्ड ट्रेनिंग ले चुके होते हैं, तो दे नो द रिस्क एंड द कॉम्प्लिकेशंस और द इम्प्लीकेशंस एंड देयर ट्रीटमेंट प्लान मच बेटर एज कम्पेयर टू जनरल डेंटिस्ट. सो इम्प्लांट्स में भी आज की डेट में एवरी थर्ड डॉक्टर इज सेइंग दैट दे आर डूइंग इम्प्लांट्स एंड दे कैन डू. राइट. But still, I'll say if you are going for some basic procedures where you are paying, you have authority, you have a right to ask for your specialist that how he is doing. Yes. If there is any surgery which is to be performed by a doctor, वो डॉक्टर उस चीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड हैं या नहीं है. अगर नहीं है तो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस कितना रहा है जिस वजह से वो सारी सर्जरीज परफॉर्म कर रहे हैं. बिकॉज कॉम्प्लिकेशंस हमारे पास आती हैं, काफ़ी जगह से आती हैं, जिसमें कई पेशेंट्स का एक्सपीरियंस रहा होता है, हमने वहाँ कराया, हमने यहाँ कराया. इट कैन हैपन विद मी एज वेल, बीइंग एज अ स्पेशलिस्ट ऑल्सो. बट कॉम्प्लिकेशंस को हैंडल करना भी आना चाहिए. और अगर आप उस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं तो कभी भी ये नहीं बोल सकता मैं कि कॉम्प्लिकेशंस होती नहीं हैं. कॉम्प्लिकेशंस ज़रूर होती हैं, लेकिन हमें उसे हैंडल करना मच बेटर तरीके से आता है एज कम्पेयर टू जनरल डेंटिस्ट. तो श्रोताओं, ये थे
डॉक्टर चंद्र प्रकाश, आपने देखा कि किस तरह से इतने क्वालिफाइड होने के बाद, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद, कितनी हम्बलनेस से आपने सारी बातें स्पष्ट की। और मैं अक्सर कहा करता हूं कि वो शख्स जो तुमसे झुक के मिला होगा, यकीनन उसका कद तुमसे बड़ा होगा। तो डॉक्टर चंद्र प्रकाश एक बड़े कद के एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, जिन्होंने बहुत ही सरलता से अपनी सारी एक्सपर्टाइज को हमारे सामने रखा। आप जो भी इस पे रिएक्शन देंगे, हम उसको वेलकम करेंगे। और डॉक्टर साहब, पुनः आपका आभार व्यक्त करते हुए, धन्यवाद देते हुए, मैं ये समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी में आपका ये इंटरव्यू बहुत सार्थक साबित होने जा रहा है, क्योंकि आपने इससे जो अवेयरनेस दी है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज्यादा लाभदायक साबित होने वाली है। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत आभार। थैंक यू।